Principal Sir, please come on stage or here to felicitate Professor G.B. Sharma ji with a token of love, and please give a big round of applause, audience. तालियां रुकनी नहीं चाहिए. Thank you, sir. Thank you so much. Now, our next speaker is Shri Girish Shaji, who has joined us from USA. Sir, on behalf of organizers, I welcome you in this conference on relevance of yoga and Ayurveda. Before his speech, I would like to introduce him to the audience. अनम्यूट कर दीजिए. MA and Bachelor of Science and has been teaching, mentoring and promoting wellness for patients seeking proven results without the reliance associated with pharmaceutical field. He has been offering services in the field of mind-body, non-pharmaceutical well-being. His speech, I would like to introduce illness management program for more than 38 years. Sir is MA. He has helped Bachelor of Science and has been teaching. He has helped improve the and quality of life for patients suffering from psychological disorder, reliance associated with attention deficit, hyperactivity disorders, post-traumatic in the field of mind disorders and anxiety and well disorders. And I would like to introduce Illness program for more than muscular dystrophy, various forms of cancer and deficiency, and has been teaching. He has helped improve the and quality of life for patients suffering from psychological disorder, reliance associated with attention deficit, hyperactivity disorders, post-traumatic in the field of mind disorders, where you have to silence your mind. And I would like to introduce Illness program for more than muscular dystrophy, various forms of cancer. Sir, you have to off your mic during the talk. Mental and quality of life for patients suffering from psychological disorder, reliance associated with attention deficit, hyperactivity disorders, post-traumatic in the field of mind disorders, where you have to silence your mind. And I would like to introduce Illness program for more than muscular dystrophy, various forms of cancer. Over to you, sir. You have to off your mind during the talk. Share your knowledge with us. And quality of life for patients suffering from psychological disorder, reliance associated with attention. Sir, please off your mic during the talk. In the field of mind disorders, where you have to silence your mind. And I would like to introduce our technical team. Please help the program for more than muscular dystrophy. Over to you, sir. You have to off your mind during the talk. Share your knowledge with us and quality of life for patients suffering सर from आपके पास शायद दो लॉगिन्स हैं तो एक स्पीकर ऑफ कर लीजिए. off your mic during the talk. In the field of mind disorders, where you have to silence your mind. And I would like to introduce our technical team. Please help the program for more than muscular dystrophy. Over to you, sir. You have to off your mic during the talk. I cannot switch off my mic, otherwise nobody is going to listen to me. स्पीकर ऑफ कर लीजिए. Off your mic during the talk. Huh? In the field of mind disorders, where you have to silence your mind. And I would like to introduce our technical team. Please help the program for Very good.
मेरी आवाज आ रही है? आर यू ऑल लिसनिंग टू मी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद। आप दो बार बोल रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। सर, आपने एक्चुअली 2 स्पीकर या 2 लॉगिन आईडी से ज्वाइन किया था, इसलिए आपकी तरफ से वो दोनों एक साथ चल रहे थे। अरे मेरी तरफ से तो एक ही है लॉगिन आईडी। Anyhow, sir, you can start with your topic. चलिए, लोग भी सुन रहे हैं, हिंदी में करें या अंग्रेजी में करें? सर, हिंदी में ही चाह रहे हैं। चलिए, भी कर सकते हैं। हाँ नहीं हिंदी में ही करते हैं। इतने दिनों के बाद तो मौका मिला है, 5 साल के बाद हिंदी बोलने का। चलिए, योग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिल्कुल साफ साफ। आप सब लोग सुन रहे हैं, हाँ मैं दर्शकों को भी देख रहा हूँ। जरा ये बताइए कि पिछले हफ्ते कितनी बार आप गुस्से में आए, दुखी हुए और अपने लोगों से ही दुखी हुए? देखिए हंसी आ रही है। पर ये बताइए कि किसने एसएमएस और ईमेल भेजा था कि आप जब अपने पति पत्नी बच्चों से मिलेंगे तो दुखी होंगे और गुस्सा करेंगे? मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ यहाँ पे, मैं बड़ा प्रैक्टिकली सिखाता हूँ, भाषण देना नहीं आता। देखिए सब लोग हंस रहे हैं। पिछले हफ्ते कितनी बार आप दुखी हुए और उस दुखी होने का किसी ने एसएमएस भेजा था, पत्नी ने एसएमएस भेजा था कि जब मैं आऊं तो मेरे पे गुस्सा होना? पत्नियां देख रही हैं पति की तरफ जो है, और पति, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण हमारा मन है ना। तो मन के अंदर ऐसा क्या कारण है? अब मन को पकड़िए। भाई किसी ने एसएमएस तो नहीं भेजा था ना कि दुखी हो, और दुखी नहीं हुए, दुखी हुए तो क्या कारण था? तो कारण हमारा मन के अंदर है। सारे अनुभव हमारे मन के अंदर होते हैं। किसी को आप बुरा कहें, किसी को आप अच्छा कहें, वो सारे के सारे अनुभव आपके मन के अंदर होते हैं। ठीक बात है, हाँ भी करते रहिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सब अभी पिछले सारे स्पीकर्स में हाँ हाँ करते रहे तो मेरी भी हाँ करते रहिए। तो भाई मन के अंदर क्या है कि मैं आसक्ति और अनासक्ति, 2 भाव हैं, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, लाइक्स और डिसलाइक्स। तो अगर मैं किसी व्यक्ति को लाइक करता हूं तो उसकी बात सुनने से मुझे खुशी होगी, और डिसलाइक करता हूं तो क्या होगा? आपको पता ही है, दुखी होंगे। तो अब ये खोजना है कि भाई ये मेरे मन के अंदर दुख और सुख कैसे आ गए। एक तो कारण हुआ कि भाई पसंद है, अब मेरी दाढ़ी पसंद है तो लोग सुनना शुरू कर देंगे, दाढ़ी पसंद नहीं है तो कोई नहीं सुनेगा। उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया कि किसी ने मुझे एसएमएस ईमेल नहीं भेजा कि आप गुस्सा करेंगे मैं जब आऊं आपसे मिलने, तो सारे अनुभव मन के कारण हुए। मन में क्या होता है कि मन में लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं कि मुझे कोई चीज़ पसंद है और वो चीज़ पूरी हो गई तो सुख, और वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो दुखी हो गए। तो भाई अब ये ऐसा क्यों होता है मेरे जीवन में? सबके जीवन में होता है नहीं होता? जरा गर्दन भी हिला दीजिए, मैं बड़ी दूर से बोल रहा हूँ, नाराज मत होइए। हाँ गर्दन भी हिला दिया, ठीक। तो अब ये क्यों होता है? मैं योग की बात कर रहा हूँ और तुरंत फिर मैं योग के ऊपर ही आ जाऊंगा। तो इसका मतलब जब हमारे संत लोग, सारे जो गुरु लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमें विवेक से जीना चाहिए। अब ये बात आ गई कि क्या मैं इस पसंद नापसंद को, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट को, क्या मैं हटा सकता हूं? तो वहां से क्या बात आ गई? एक मन आ गया और एक बुद्धि आ गई। मन का क्या स्वभाव है?
मन का स्वभाव है, वो पसंद नापसंद से ही बात करेगा, इम्पल्सिव है, इरेटिक है, इरेटिक। और बुद्धि हमारी क्या है? मनुष्य के पास जो बुद्धि है वो स्वतंत्र है, उसके पास चुनाव है। चुनाव क्या है कि आप जैसे कि अब मेरा ही उदाहरण ले लो, मेरे से आप गुस्से में हो तो बुद्धि कहती है नहीं नहीं अभी गुस्सा नहीं करना, इसको बोलने दो, बाद में बात करेंगे। ये बुद्धि का काम। मैं आपके मन और बुद्धि की बात कर रहा हूं, मैं इतनी दूर बैठा हुआ। तो एक मन जो होता है वो आवेग में आकर पसंद नापसंद, अटैचमेंट और डिटैचमेंट के कारण क्या करता है? वो दुखी और सुखी हो जाता है। उसी से आपको क्रोध आ गया। पर भगवद गीता में जो वो कहा है कि भाई डिजायर है, लोभ क्रोध मोह, मद और मात्सर्य, जिसको कि आपने कई हमारे उपस्थित स्पीकर से सुना होगा। तो एक मन है और एक बुद्धि है। तो बुद्धि में क्या है? बुद्धि स्वतंत्र है, वो चुनाव कर सकती है, वो सोच सकती है। क्या सोच सकती है? सही रास्ते पे जाना है या गलत रास्ते पे जाना। कि भाई किसी ने मुझे मेरी बात को पसंद किया तो वो सुखी हो गया, उससे भी नहीं जुड़ना, और दुखी हो गया तो उससे भी नहीं जुड़ना। ये बुद्धि का काम है। तो जब ये बुद्धि जागती है तब इसको हम कहते हैं विवेक की जागृति हो गई, विवेक की जागृति हो गई। तो अब ये विवेक की, हाँ मैं देख रहा हूं आप दोनों गपशप कर रहे हैं, मुझे दर्शकों को देखने से आपने रोक लिया। नहीं पर ठीक है कोई ऐसी बात नहीं तो विवेक को जागृत, विवेक से जीवन जीने के लिए योग है। विवेक ख्यातिर विप्लवाहानोपाय, कि विवेक की ख्याति, यानी विवेक की ख्याति अगर हो गई मेरे जीवन में, मेरी बुद्धि में, तो वो मन के ऊपर असर डालेगी और मन का स्वभाव बदल जाएगा। पकड़ में बात आ रही है या नहीं आ रही? चलिए, कुछ तो गर्दन हिल रही है, तो चलो थोड़ा सा लग रहा है। कुछ लोग तो कह रहे होंगे मुझे पता ही है, घर जाके बताऊंगा, गुस्सा करूंगा। लो फिर फंस गए, फिर फंस गए। वही तो मैं बात कर रहा था, मन और बुद्धि। एक महिला बड़ी बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, नाराज होकर बैठी हुई है। चलिए अब वापस फिर आगे बढ़ते हैं कि अब इस विवेक को क्यों नहीं आने देता एक व्यक्ति। देखो, विवेक का एक और उदाहरण मैं देता हूं। शेर जो है वो घास नहीं खा सकती, क्योंकि उसके पास बुद्धि और विवेक नहीं है। उसके पास ऑटोमेटिक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और बकरी जो है वो मांस नहीं खाती है, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा कंट्रोल्ड है। हमारी बुद्धि स्वतंत्र है। तो अगर इस बुद्धि को मन के प्रभाव में नहीं आने दें, सबके पास मन बुद्धि है ना, जो सुन रहे हैं मुझे, तो बुद्धि को मन के प्रभाव में नहीं आने दें तो समस्या ठीक हो जाएगी, योग हो जाएगा। तो अब उल्टा चलते हैं कि बुद्धि के प्रभाव, बुद्धि के ऊपर मन कैसे प्रभाव डालती। तो हमारे पतंजलि महर्षि कहते हैं कि 5 डिफेक्ट हैं। किसके अंदर? मन के अंदर। हम सबके अंदर, मैं भी शामिल हूं उसमें। दाढ़ी वाला भी, कोई दाढ़ी वाला दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, सब बिना दाढ़ी वाले। तो 5 डिफेक्ट हैं। तो वो 5 डिफेक्ट कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अविद्या का मतलब है मिसकंसेप्शन। अविद्या का मतलब ये नहीं है जानकारी नहीं है। अविद्या का मतलब ये है कि जैसे उदाहरण लो, तो बड़ा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। शादी हो गई लड़की और लड़के की, है वो याद होती है ना, तो पति पत्नी हो गए हैं। अब मुझे उस युवक में पति ढूंढ के दिखाओ और पत्नी में पत्नी ढूंढ के दिखाओ। ढूंढ सकते हो?
तो इसको कहते हैं अविद्या। जो व्यक्ति है उसको ना समझ के हमने भ्रम बना लिया। अगर एक पति अपनी पत्नी को एक युवती के रूप में व्यवहार करेगा तो दाम्पत्य जीवन में एकदम सुखी हो जाएगा। वो अविद्या के कारण है, नासमझी के कारण। अविद्या का मतलब एक नासमझी। उस नासमझी से हमारा अहंकार बढ़ जाता है। नासमझी से अहंकार बनता है, और अहंकार के आगे क्या कहानी है? राग और द्वेष बन जाते हैं। और राग और द्वेष के बाद क्या होता है? अभिनिवेश। हम ये समझ लेते हैं कि मैं शरीर हूं। तो ये 5 डिफेक्ट हैं। अगर ये 5 डिफेक्ट हमारी बुद्धि को विवेक से काम करने से रोकता है, और विवेक से काम करने से जब रोकेगा, देखिए सब लोग अपने गपशप में लगे हुए हैं, तो विवेक से काम करने से रोकने में लगेगा। जब ये रोकने में लगेगा तब हम दुखी हो जाते हैं। और उसी को अभी हमारे पुराने स्पीकर ने बड़ी लंबी चौड़ी बात कही कि स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस, अरे पहले ये तो जानना है कि मेरे जीवन में स्ट्रेस क्यों होता है, आया कहां से। तो मन और बुद्धि, ये बात अगर हमने समझ ली तो हमें पता लग जाएगा कि ये तो क्या किसको संभालना है? मन को संभालना है। अब मन को उन विचारों से अलग करना है जो इन 5 डिफेक्ट के कारण आए। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? नहीं, सब लोग समझ रहे हैं, विद्वान आदमी है सभी लोग। एक दाढ़ी वाले तो दिखाई दे रहे हैं, बड़े काली दाढ़ी वाले, बड़ी अच्छी बात। तो ये 5 जो डिफेक्ट हैं वो मन के कारण आए हैं। अगर इनको हम अलग हटा देते हैं, तो देखो, एक तो विचार होता है ना, एक विकार होता है। विचार, अभी जो मैं कह रहा हूं वो विचार कर रहा हूं मैं। अगर मैं विकार करने लग जाऊं तो मैं कहूंगा नहीं, ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति सही है, राग द्वेष हो जाएगा ना। तो घर में भी तो ये सोचना पड़ेगा ना मुझे, है? घर में ही राग द्वेष ज्यादा होता है, घर में ही समस्या ज्यादा होती है, बाहर तो कोई सुनने वाला नहीं है। बाहर सुनने वाला नहीं है ना। तो ये जो 5 डिफेक्ट हैं उसको दूर करने के लिए पतंजलि महाशय ये कहते हैं, क्या करो? अथ योग अनुशासनम। योग जो अनुशासन रूप है उसको अपने जीवन में अपनाए। पर यहां पे एक शब्द बड़ा अच्छा है, अथ। तो अथ का मतलब यह है कि क्या मैं योग्य हूं योग साधना करने के लिए? आपके बेटे ने, मैं माताओं से कह रहा हूं या पिताओं से, मैं भी पिता की तरह ही हूं ना, तो इसलिए अगर आपके बेटे ने कार ले आई, नई कार, और आप पिता कोई कहे, माँ ये कहे कि चलो मैं आप ड्राइव करता हूं, तो जिस प्रकार ड्राइवर लाइसेंस लेने के लिए एक तो शारीरिक क्षमता चाहिए और किसका ज्ञान चाहिए? रूल्स ऑफ द रोड, नियम का पालन होना, ये दो चीजें हैं ना। उसी प्रकार से अथ योग अनुशासनम जो है, जिसमें अथ शब्द प्रयोग किया गया है, उसका मतलब ये है, क्या मतलब है भाई? बंधुओं, महिलाओं, जो मुझे कहना कि चुप हो जाओ तो मैं चुप हो जाऊंगा, जब भी आपको बंद होना है तो यहां भी करता ही रहता हूं बग। तो क्या है, इसी तरह की योग्यता हमारी चाहिए, तब हम योग को अनुशासन के रूप में अपने जीवन में उतार सकते हैं। साधक बनना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया, फिर हमारी गपशप आप सुनते रहेंगे। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से कंप्लीट कर दीजिए सेंटेंस, आपको पता है क्या कहने जा रहा हूं। तो अथ योग अनुशासन, तो सबसे पहले वो ज्ञान मुझे लेना पड़ेगा।
शास्त्रों में कहा है जानाति इच्छति करोति। पहले योग को इस गहराई से समझना होगा। साधक बन गए हम तो दूसरा सूत्र क्या कहता है पहले अध्याय का? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। मन को अब खाली करना है। किससे खाली करना है? विवेक से खाली करना। जबरदस्ती नहीं खाली करना। योग को मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना कंट्रोल करेंगे उतना दब जाता है। और मन में गुस्सा है ना मेरे प्रति, मान लो आप उदाहरण ले लो, तो आपका मुंह का चेहरा बदल जाएगा। आप कितना भी रोको तो भी चेहरा बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? घर में भी तो ऐसा ही होता है। जिन जिन के घर में होता है वो लोग अपना गर्दन हिला रहे हैं। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। अब कोई गर्दन ही नहीं हिलाएगा। तो वो मन को खाली करने की जो युक्ति है वो विवेक के द्वारा नहीं होगी, तब तक बात नहीं बनेगी। अब फिर मन के ऊपर वापस आते हैं तो पतंजलि महाशय ये कहते हैं कि मन की 5 तरह की अवस्थाएं हैं और 5 तरह के विचार हैं। 5 तरह के: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। मेरे को मूढ़ मत कहना, नहीं, सभी व्यक्तियों के अंदर 5 तरह की अवस्थाएं होती हैं। हर एक का मन 5 तरह की। कभी आप गुस्से में आ गए, वे कहते हैं बात मत करो, खत्म हो गई, आप भी बात बंद कर दो, मेरी बात निकाल रहे हो आप मेरे। तो 3 चीजें हैं: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ अवस्था। 3 ये अवस्थाएं हो गई। और चौथी कौन सी है? एकाग्र अवस्था। 5वीं है निरुद्ध। निरुद्ध को कहते हैं खालीपन, खाली हो गया। तो जब तक मैं क्षिप्त का मतलब पागलपन है, विक्षिप्त का मतलब यह है कि किसी भी एक चीज को लेके अड़ के बैठ गए। हमारे बड़े बूढ़ों में है ना कि बस मैंने जो कहा वही होगा, तू बेटा है, चाहे बेटा सही हो। होता है ना ऐसा? तो ये 3 अवस्थाओं के विषय में पूरी समझ हो पहले मेरे मन में कि ये क्षिप्त अवस्था है। मैं क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था में कभी भी किसी व्यक्ति से बात न करूं, अपने मन को पीछे ले जाऊं, चुप हो जाऊं। जब तक कि मन एकाग्र अवस्था में नहीं आता तब तक मैं बातचीत ना करूं। तो उसमें कौन से कारण आएंगे? गुस्सा आता है, गुस्से को पीछे ले जाओ, अभी बात नहीं करूंगा, चलो 1 कप चाय बनाओ उसके बाद बात करूंगा, तब तक गुस्सा ही चला जाएगा। ये विवेक जागरण की अवस्था। इस विवेक से हमें काम लेना होगा, तब जाके मन खाली होगा। मन ऐसे ही खाली हो जाएगा। तो जब मन खाली हो जाता है तब क्या होता है? तो पतंजलि महाशय कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब क्या होता है कि मेरा जो अपना स्वभाव है। अब आपका स्वभाव क्या? कई लोग कहते हैं ना इसका स्वभाव तो हमेशा ये लड़ता ही रहता है, नाराजी होता रहता है, मुंह फुला के रहता है। कम से कम जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक मुंह फुला के नहीं रखना, बाद में जितना आपने करना है वो कर लेना। मुंह फुला के रखता है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। आप सब में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शांति नहीं चाहता, प्रेम नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता? टेल मी, हु इज नॉट सीकिंग पीस, हैप्पीनेस, लव, ट्रूथ एंड विजडम? हर एक व्यक्ति चाहते हैं ना? हाँ भी कह दीजिए ना, मैं देख रहा हूं आप सबको। कभी आपने ये सुबह सुबह उठ के कहा कि आज मैं बड़ा दुखी होना चाहता हूं? आ जाओ दुखी करने वाले। क्यों? क्यों? सारे शास्त्र ये कहते हैं कि शांति मेरा स्वभाव है। किसका स्वभाव है? हर एक मनुष्य का शांति, प्रेम, ज्ञान, सत्य स्वभाव है। इसीलिए हम शांति के पीछे जाते हैं, इसीलिए आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए।
कभी ये सोचा आपने कि शांति और प्रेम मेरा स्वभाव है? हमेशा हम यही कहते रहते हैं क्रोध मेरा स्वभाव है, बस पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, बस एकदम मैं लड़ बैठती हूँ, नहीं लड़ बैठता हूँ, दोनों के साथ दे रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या हो जाता है। क्या नहीं हो जाता, जब तक मेरे मन के अंदर ये उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा कि शांति मेरा स्वभाव है, प्रेम मेरा स्वभाव, ज्ञान मेरा स्वभाव, उसी को पतंजलि क्या कहते हैं? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। क्या हो जाता है कि मन जब खाली हो गया, ध्यान में गया, उस ध्यान में उस शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद का अवतरण हो जाता है। क्या मतलब होगा? योग सिद्धि होगी। 4 ही सूत्र में योग सिद्धि होगी। शुरुआत कहां से करनी? शांति मेरा स्वभाव है, इसको गहराई से समझना है कि मैं शांति चाहता हूं। मैं अभी मॉर्निंग में क्लास ले रहा था यहाँ अमेरिकन्स की, तो वो एक महिला आई तो उन्होंने कहा कि मैंने बुद्ध को पढ़ा, पतंजलि को पढ़ा, मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। मैंने बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये बताओ कि पतंजलि ने जो अपने जीवन में किया, बुद्ध ने जो अपने जीवन में किया, इसी वजह से वो मुक्त पुरुष कहलाते हैं ना, और तुमने उसको पढ़ा तो कंफ्यूज हो गए और वो मुक्त हो गए, तो गलती कहां है? मेरे भेजे में, मेरे मन में। तो जब तक इस मन को दिशा नहीं देंगे, अमृत बिंदु उपनिषद का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। सीधा साधा सा अर्थ है कि मन 2 प्रकार का होता है, एक होता है अशुद्ध, एक होता है शुद्ध। अब नाराज तो नहीं हो रहे? जो लोग नाराज होकर सुन रहे हैं उनका मन अशुद्ध है। जो प्रेम से सुन रहे हैं उनका मन नहीं। पर अब ये भी समझना है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। अब मैं गलत बोल रहा हूं तो नाराज होंगे ही ना आप। ये देखो फिर बीच में आ गए। चलिए कोई बात नहीं। तो मन 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध मन होता है, एक होता है अशुद्ध मन। तो अब ये समझना है कि अशुद्ध मन जब तक रहेगा तब तक हम दुखी रहेंगे। तो अशुद्ध मन क्या होता है? अशुद्धम काम संकल्पम, यानी अशुद्ध मन में 2 प्रकार की चीजें होती है। एक तो काम होता है, काम का मतलब डिजायर, इच्छा। इच्छा, ऐसी इच्छा जो दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर निर्भर करती है। समझ रहे हैं? इच्छा, मेरे को भूख लगी है, खाना खाना है, इस इच्छा से नुकसान नहीं होगा। बहू काम नहीं कर रही, पता नहीं पति कैसे हैं, बड़ी बेकार हैं। देखो, अरे मेरे को क्यों दिखा रहे हो? दर्शकों को दिखाओ। मैं 2-2 फोटो देख रहा हूं। तो अशुद्धम काम संकल्पम। हाँ अब ठीक। अब मैं अपने को देख के क्या करूंगा? आप सबको देखूंगा तब तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अशुद्धम काम, तो इच्छा 2 प्रकार की है। एक इच्छा ऐसी है जो भूख लगती है, खाना खाना है, ठीक है, उस इच्छा से कोई नुकसान नहीं होता। वो इच्छा बार बार हमारे मन के अंदर हमें कुंठित नहीं करती। तो ऐसी इच्छा जिससे हम संसार में सुख और शांति की खोज करते हैं। मेरे पति ने मुझे सुख नहीं दिया, मेरी पत्नी ने नहीं दिया, मेरे बच्चों ने नहीं दिया। अरे उनके पास है ही नहीं सुख, तो देंगे कहां से? किसके अंदर है? मेरे अंदर। अभी मैंने बात की ना, शांति मेरा स्वभाव है, प्रेम मेरा स्वभाव है। ये यहां से यात्रा शुरू करनी है योग। पहले ये ठान लेना, और फिर गुरु जितने भी आपको मिलते हैं, गुरु, मैं तो गुरु नहीं कहता, दाढ़ी बढ़ा ली है मैंने वैसे यहाँ पे, गुरु नहीं कहता मैं।
तो यहाँ खोज करनी है, हर एक गुरु से ये पूछना है कि जब शांति में जाना है तो शांति है कहाँ, ये बता दो। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। बस मैं खत्म कर रहा हूँ, बस इंटरप्ट कर रहा हूँ, बस खत्म कर रहा हूँ। आप जितना इंटरप्ट करना है कर लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में। नहीं, बस जीवन में समय, हाँ जी, बस समरी देता हूँ मैं 30 सेकंड में। तो काम हम क्या करते हैं, हम पति के ऊपर सुख को आरोपित कर लेते हैं और फिर पूछते हैं कि पति, ऐसे पति पता नहीं कहाँ से आ गए, ऐसी पत्नी पता नहीं कहाँ से। आरोपित सुख को हम बाहर कर लेते हैं, इसको कहते हैं अशुद्ध मन। और अशुद्ध मन की मैंने बात बताई थी कि क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, ये तीनों अशुद्ध मन को दे देते हैं। समय की कमी है, इसीलिए आप सबको मेरा नमन अमेरिका से। फिर कभी मौका मिलेगा तो बातचीत करेंगे। धन्यवाद। लीजिए जी, खत्म कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।